Hello friends, I am Sunil Weiser, your teacher for BCom first year, first semester, subject Business and Industrial Economics. So friends, in this semester for this Business and Industrial Economics, the paper carry 100 marks, 18 marks for theory portion and 20 marks for practical and session. This semester you have 5th chapter. First is introduction to economics. This is an introduction to economics. In that you will study meaning, definition, nature, characteristics, significance, scope of business economics, objective of business firm. Second lecture, theory of consumer behavior. Theory of consumer behavior. In this you are going to learn indifference curve approach, meaning, definition, assumptions, properties of indifference curve and consumer equilibrium. The third chapter, elasticity of demand. In that you will learn concept and determinants of elasticity of demand, price elasticity, income elasticity and cross elasticity. Average revenue, marginal revenue, importance of elasticity of demand and demand forecasting methods. The fourth chapter, market structure and business decision, objective of business firm, perfect competition, meaning, concept, features, monopoly meaning, concept and feature, Security Exchange Board of India means SEBI and Foreign Exchange and Management Act decision FEMA. And then last chapter, factors, pricing. In that you will learn marginal productivity theory and demand for factors, nature of supply of factor inputs, determinant of wage rate under perfect competition and monopoly, interest concept, theories of interest. Okay, so this is your syllabus in short. Now we start our first chapter, introduction to business economics. See student, we studied economics in 11th standard. If you are a commerce student, you studied economics in 11th standard. You also studied economics in 12th standard. Now you are in first year commerce, become first year. In this semester, university given you the subject as a business and industrial economics. Okay, so before going towards the business economics, what is business economics and all that, first we will have a small revision. Okay, and that revision is related to basic of economics. Then start करते हैं what is economics, कि भाई economics क्या है. We heard this word economics so many times. So क्या है, देखो बच्चों, जो साइंस होते हैं ऐसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. जनरली साइंस डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट विल टॉक अबाउट साइंस. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द साइंस. साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस? वेरी सिंपल, साइंस इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. जो नॉलेज होता है पर्टिकुलर ब्रांच का, उसको जब सिस्टमेटिक वे पे कंस्ट्रक्ट करके, उसको जनरलाइज करके सिस्टमेटिक बॉडी में उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसको एक स्ट्रीम होती है, एक नॉमेनक्लेचर होता है, उसको हम बोलते हैं साइंस. सो व्हाट इज द स्मॉल डेफिनेशन और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइंस? इज साइंस इज systematic body of knowledge about particular stream. So generally science divided into two angles, two, which one is a pure science जिसको हम फंडामेंटल साइंस बोलते हैं या नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, एज लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री. दिस प्योर साइंस, 2 + 2 = 4, प्योर साइंस, नेचुरल साइंस, फंडामेंटल साइंस. और जो दूसरा जो साइंस होता है इसको हम बोलते हैं सोशल साइंस. सोशल साइंस, ओके, सोशल साइंस विच इज रिलेटेड टू द सोशल बिहेवियर ऑफ person. In that, political science, sociology, how person behave
in society, what are the code of conduct of society, which are the organization in the society related to person, then psychology जिसके बारे में दिल के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है, अपना हिंदी पिक्चर वाला दिल, हाँ, तो उसके बारे में जो पढ़ा जाता है साइकोलॉजी होता है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ सोशल साइंस। तो पहली बात मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो ये इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स, द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड। ग्रीक जो वर्ड है, क्या कौन सा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओकिनोमिया। सो ओकिनोमिया वर्ड से ये इकोनॉमिक शब्द क्या हुआ है, प्रचार प्रसार में वहां से आए। व्हाट इज द मीन ऑफ ओकिनोमिया? व्हिच मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जो घर होता है, फैमिली होता है, हाउस होल्ड होता है, उसका जो मैनेजमेंट है, विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट? इकोनॉमिक मैनेजमेंट, रिसोर्सेस, एप्लीकेशन, यूटिलाइजेशन। सो economics is the word which is derived from the Greek word oikonomia and which means management of household. See friends, as I told you, economics is a social science. Economics deals with the economic aspect of human behavior. Economics deal with economic aspect of human behavior. See, suppose I read paper, this is not economic behavior. Suppose I play cricket, this is not economic behavior. When I marry with girl, when I married with girl, this is not economic behavior. When I enjoy tea in my house, this is not economic behavior. What is economic behavior? Economic behavior where the money and money's worth involved. जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरी एक्टिविटी है, जहां पे पैसा या पैसे के लेवल पे अगर कुछ इन्वॉल्व होता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता हूं या इकोनॉमिक बिहेवियर बोलता हूं। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग टी इन माई हाउस, आई वेंट टू कैफेटेरिया और आई वेंट टू रेस्टोरेंट, आई एंजॉय अ कॉफी, आई हैव टू पे समथिंग, दिस इज एन माई इकोनॉमिक बिहेवियर, राइट? As a teacher, I teach my daughter, this is not economic behavior, but as a teacher, I teach you and college pay me the salary, this is my economic behavior. Okay? So, economic studied human behavior, but in which angle or in which context? In economic context. So, it deals with how human beings satisfy his unlimited wants with limited means. See friends, you know, day by day, our wants are increasing tremendously. When I was student, I didn't have mobile. So when I was in 10th standard, I didn't have mobile. When I was in post graduation, I was appearing for post graduation, I didn't have mobile. But today, the student appearing for the 11th standard, he has mobile. So wants are increasing and these wants are unlimited. Okay, so human wants are unlimited and the sources with which you want to satisfy these wants, the sources are limited. Means there is a question about a choice. Suppose this is my want, this is my sources. Numbers of want, I have numbers of want and I have very limited resources. So how to use these resources to satisfy my wants? This is the question and this is the matter of study with economics. So economics deal with the how human beings satisfy unlimited wants with the limited means. Economics explain about the economic activity of man. Any activity which is related to earning of money and spending of money. So economic is a science of choice. It teaches the art of rational decision making. Thus economic has a significant role in modern business. Okay, तो क्या सीखा भाई हमने कि economics is a social science. अभी तक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ गए भी नहीं है। क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. Science means systematic body of knowledge.
Science has two parts. One is pure science, fundamental science, natural science. Another is a social science. Social science which is related to human behavior. In that, economics is a social science because economic studied human aspect in economic behavior, economic aspect of human behavior. Okay, and it deals with how human being satisfy unlimited wants with limited means. So ultimately economics is science of choice and it has significant role in modern business. ओके क्लियर। चलो अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सी फ्रेंड्स, डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की तरफ देखने का जो नजरिया था, इट चेंज ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे इकोनॉमिक्स की तरफ देखने का जो नजरिया था वो नजरिया बदलता गया और उसके साथ उसकी डेफिनेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सो उसमें जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न, इस तरीके से। सो पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोल के इकोनॉमिक्स में जानी जाती है। Adam Smith definition is recognized as a wealth oriented definition. Wealth मतलब संपत्ति। Okay, so Adam Smith was a classical economist and he is known as father of economics. So आप लोगों को पता होना चाहिए who is the father of economics? Adam Smith जो है उनको हम father of economics बोलते हैं। And he wrote one very famous book in 1776. The name of the book is An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. क्या पढ़ रहे हैं हम? We are studying definition of economics. In that first definition given by Adam Smith, and this definition is well known for his approach, and the approach is wealth oriented definition. So Adam Smith, as a father of economics, he wrote one book named An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in the year of 1776, and in that he say economics is a science of wealth. Economics क्या है? तो economics ये संपत्ति का शास्त्र है, wealth का science है। मतलब how to acquire wealth, the ways of acquiring wealth, how to acquire wealth and how to manage wealth and how to spend our wealth. Triangle. एडम स्मिथ क्या बोलते थे की एडम स्मिथ असं म्हणतात की अर्थशास्त्र हे संपत्तीचं शास्त्र आहे। संपत्ती कशी जमा करावी, तिचं व्यवस्थापन कसं करावं आणि त्या संपत्तीचा वापर कसा करावा याबद्दलचं माहिती, याबद्दलचं मत एडम स्मिथने 17व्या शतकामध्ये त्यांच्या पुस्तकामध्ये मांडलेलं आहे। What are the key points of Adam Smith definition? The first is laissez-faire, means as per Adam Smith view there should not be any interference of the government. एडम स्मिथ जी को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सी फ्रेंड्स, इट इज प्योरली इम्पॉसिबल। कोई भी आपकी एक्टिविटी हो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। आपको परचेस करना है कुछ, जीएसटी देना पड़ेगा। यस, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू हैव टू ग्रांट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, सो देयर आर सो मेनी लॉज। आपको बैंक में पैसा डालना है, देयर इज अ गवर्नमेंट। सो एडम स्मिथ जी को ऐसा लगता था कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, मतलब नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए अब गवर्नमेंट का, वो एक उनका कहना है। सेकंड उनका जो पॉइंट है कि कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, वो कहते थे कि संपत्ति को क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, उसको जमा करके रखना चाहिए। थर्ड था नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेचर्स लॉ क्या होता है भाई? नेचर्स लॉ किसी को पता है? निसर्गाचा नियम काय? जो बळी तो कानपिळी, ज्याच्याकडे ताकद आहे, ज्याच्याकडे ताकद आहे तो काय करतो, राज्य करतो। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तळे राखी तो पाणी चाखी, ज्याच्या जो तळ राखतो तो पाणी पितो, जो बढ़िया है तो उस कान पिलतो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके पास पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वही क्या करेगा, बड़ा बनेगा। ये इस डेफिनेशन से लगता है। और फोर्थ उनका जो था, डिवीजन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, वो बोलते थे कि लेबर जो है उनको क्या करो, डिवीजन करो, जो काम है उसको डिवाइड करो। जैसे हम बैंक में देखते हैं ना, एक आदमी वेरीफाई करता है, दूसरा आदमी कैश लेता है, तीसरा आदमी इसको अप्रूव करता है, तो लाइक दैट देयर शुड बी अ डिवीजन इन लेबर। ओके, तो क्या देखा हमने, पहले हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वी स्टडी हाउ द ह्यूमन बीइंग satisfy unlimited wants with limited resources. Okay, after that we seen first definition given by the father of economics, Mr. Adam Smith, and Adam Smith says it is a science of wealth. Okay, now we'll study the second definition given by Professor Alfred Marshall, and definition is recognized or well known for his welfare approach. वेलफेयर करना है, कल्याण करना है, कल्याणकारी, कल्याण करना है, सबका वेलबींग देखना है। वेलफेयर मतलब वेलबींग। सो ही इज ए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल मतलब पुराना, न्यू क्लासिकल मतलब पुराने से थोड़ा सा एडवांस वाला। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जैसे हमारे दादाजी क्लासिकल, हमारे पिताजी न्यू क्लासिकल। सो अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को क्रिटिक्स किया, उसको क्रिटिक्स किया और बोला कि इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट accumulation of wealth, but how to use this wealth for our well-being। कि भाई सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, वो संपत्ति जमा करना नहीं है, तो वो संपत्ति जमा करने के बाद उसका यूज कैसे करना है फॉर आवर वेल-बीइंग, तो उसको हम बोलेंगे वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्या कहते हैं देखिए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इन हिज बुक। जो बुक लिखा था मार्शल जी ने, बुक एंटाइटल एज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो बुक है इट इज पब्लिश इन 1890, एंड ही स्टेट्स एज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसका स्टडी करता है, मैनकाइंड, मानव जात, कि पूरे मानव जाति का ऑर्डिनरी, एक जनरल लेवल में ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में स्टडी करता है, एंड इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ यूज एंड मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब ओनली संपत्ति या असेट्स या वेल्थ जमा करने में, एक्यूमुलेट करना मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इट एग्जामिन दैट पार्ट हाउ ह्यूमन बीइंग यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स फॉर ऑफ वेल बीइंग, कि जो मेरे पास जो मटेरियल है, मतलब जो गोल्ड है, पैसा है, तो वो उस पैसे से मैं मेरा वेल बीइंग कैसे करता हूं, मैं अच्छा कैसे रहता हूं। तो उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो है अल्फ्रेड मार्शल की पॉइंट्स। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑर्डिनरी मैन। सेकंड, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ बिहेवियरल साइंस। द बिहेवियरल साइंस विच इज रिलेटेड टू एटीट्यूड, which is related to thinking, which is related to belief, which is related to personality. So it relates the personality with the economic behavior. It relates the attitude with the economic activity. It relates my thinking to the economic activity. Suppose I want to be my well-being, then how use my asset for my well-being? So this definition is given by the Alfred Marshall, and they say study of material welfare. मटेरियल वेलफेयर जिसको हम बोलते हैं ना भौतिक, कि आई वॉन्ट एसी, आई वॉन्ट फर्नीचर, आई नीड गैजेट्स, आई नीड व्हीकल, सो स्टडी ऑफ मटेरियल बिहेवियर। ओके, तो देन थर्ड जो डेफिनेशन है रॉबिन्स की, रॉबिन्स जी की डेफिनेशन, द रॉबिन्स डेफिनेशन इज वेल नोन फॉर हिज scarcity oriented approach. So Robbins definition is
very famous in the world of economics as a Robbins scarcity oriented definition of economics. So Robbins wrote one book, an essay on the nature of significance of economic science, which is published in 1932, and he defined economics is a science which studies human behavior as relationship between end and scare means which have alternative uses. जो डेफिनेशन है रॉबिन्स की क्या कहते हैं कि there is a relationship between of what between ends मतलब साध्य, ज्याला आम्ही मराठीमध्ये काय म्हणतो साध्य, ध्येय, वॉन्ट्स, या ठिकाणी एंड्सला आपण काय म्हणूया वॉन्ट्स म्हणूया. रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स अँड स्केअर मीन्स, त्यांनी मुद्दामने एक शब्द वापरलाय काय स्केअर. स्केअर म्हणजे काय दुर्मिळ. माझ्याकडची जी काही साधनं आहेत ती साधनं दुर्मिळ स्वरूपात आहे. माझ्याकडचा पैसा हा दुर्मिळ आहे. दुर्मिळ इन द सेन्स की तो माझ्यासाठी दुर्मिळ येतो, कमी आहे, स्केअर आहे, तुलनेनं कमी आहे. आणि मग माझ्याकडे असलेले रिसोर्सेस, या ठिकाणी मी रिसोर्सेस म्हणू त्याला इकॉनॉमिक्स मध्ये मीन्स असं म्हणतात. वॉन्ट्स इज नोन ॲज अ एंड इन इकॉनॉमिक्स अँड मीन्स इज अ नोन ॲज अ रिसोर्सेस. सो एंड्स म्हणजे वॉन्ट गरज आणि मीन्स म्हणजे रिसोर्सेस. ओके, सो देर इज अ रिलेशनशिप. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड म्हणजे गरजा किंवा वॉन्ट्स अँड स्केअर मीन्स विच हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस. माझ्याकडची जी मीन्स आहेत, सपोज आय हॅव 10,000 विच हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस. आय कॅन यूज दिस 10,000 फॉर टू पे rent of my house, to pay my child school fees. I can use this money to invest. I can use this money to picnic. I can use this money to purchase something for me. So resources, ये जो मेरे resources है, ये resources suppose है तो इसके alternative uses है. ओके, और सो मतलब वो अल्टरनेटिव यूजेस मैं कहां पर उसका यूज करता हूं, वो डेफिनेशन है स्केर्सिटी डेफिनेशन. सो की पॉइंट क्या कहते हैं? वांट्स मतलब एंड्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर कंपॅरेटिव्हली लिमिटेड. गरजेच्या तुलनेमध्ये माझ्याकडे असलेली जी मीन्स आहे, जी साधनं आहेत ती काय आहेत? लिमिटेड आहेत, म्हणजे मर्यादित आहेत. म्हणजे गरजा अमर्यादित खूप झाल्या आणि साधनं मात्र काय माझ्याकडे कमी आहेत. वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी म्हणजे माझ्या ज्या गरजा आहेत त्याची मी प्रायोरिटी करू शकतो की माझ्या 10,000 मधनं मी अगोदर फीस पे करायची आहे काय, रूमचं रेंट पे करायचं आहे काय, गाडीमध्ये पेट्रोल टाकायचं आहे काय, मोबाईलचा रिचार्ज करायचा आहे काय. वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. आय कॅन मेक the priority to my wants. Okay, those wants which are not immediate in nature I can postpone and I can use my resources those wants which are in immediate nature. And then number 4, means matlab resources. Means have alternative uses. As I told you, I can use my money for different purposes. जो पर्पज मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए मैं कर सकता हूं. ओके, शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे और आगे जाएंगे. व्हाट आई स्टडीड, वी स्टडीड फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. वी स्टडी हाउ द ह्यूमन बीइंग satisfy his unlimited wants with the limited resources. It examine the economic behavior of person. Okay, then we studied 3 definition. First definition given by Adam Smith, wealth oriented definition. Second definition given by Alfred Marshall, this is a welfare oriented definition. And third definition given by Robinson, this is an scarcity related definition. Okay, आगे चलते हैं. Now branches of economics. क्या है branches of economics? See, there are in general 2 branches of economics. One is microeconomics and second is macroeconomics.
The micro and macro were first time used in 1933 by मिस्टर रैगनर फ्रिश। मिस्टर रैगनर फ्रिश जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था। The term are derived from the Greek word micros and macros respectively. Okay. तो क्या है, जो टू ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म, ये जो शब्द है प्रथम बार प्रोफेसर रैगनर फ्रिश फ्रॉम ऑस्लो यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये 1933 में ये शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। क्या होता है माइक्रो का मीनिंग? क्या होता है? स्मॉल। सो ये जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे घटक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे फर्म्स है, उसके बहुत सारे एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है? बहुत सारे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स है, जैसे कि हाउस होल्ड है, वर्कर है, फर्म है, इंडस्ट्री है, प्राइस है। सो इंडिविजुअल प्राइस के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। हाउ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फिक्स, हाउ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज डिटरमाइंड, स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। हाउ द वेजेस ऑफ वर्कर फिक्स, स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। How the particular household manage his expenses, studied in microeconomics. How the particular industry, instead of studying the entire industry, suppose leather industry, instead of studying a leather industry, it study only a particular firm from this industry. So this is a microeconomics. Kent Boulding defines microeconomics as microeconomic is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industries and particular commodity. So instead of studying the income of entire society, microeconomics study the income of only Mr. Sunil Weiser. Okay. Instead of studying a general price level, inflation, deflation, microeconomics study only individual price of particular product. So this is a microeconomics. Microeconomics is nothing but microscopic study of economy. हम जो हमारी जो बॉडी में जो ब्लड है ना, ब्लड, तो हमारे ब्लड का स्टडी करना होता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर पूरा ब्लड बाल्टी में निकाल के थोड़ी रखता है। He take the sample and he studied our blood and then say this is a problem and this is and that. So this is a microscopic study of economics. जंगल में के पूरे पेड़ का हमें स्टडी नहीं करना है, ओनली वन पेड़ का हम स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉलेज के पूरे बच्चों का स्टडी नहीं करेंगे, ओनली एक क्लास का स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इंडस्ट्री जो है पूरे इंडस्ट्री का स्टडी नहीं करेंगे, एक ही इंडस्ट्री का करेंगे। ओके, लाइक दिस। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा वाला, एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट स्टडी द एंटायर इकोनॉमी, टोटल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? टोटल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन। एक फैमिली का कंजम्पशन नहीं और एक बंदे का कंजम्पशन नहीं, पूरे कंट्री का कंजम्पशन या पूरे स्टेट का कंजम्पशन। एक कमोडिटी का सप्लाई नहीं, पूरे कंट्री का सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। एक बंदे की डिमांड नहीं, सिर्फ सुनील वाइसर की क्या डिमांड है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा कि पूरे लोगों की शुगर की डिमांड क्या है। ओके, एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं पढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल पढ़ेंगे। ओके, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। केंट बोल्डिंग डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो बात करते हैं एग्रीगेट्स of these quantities, not with the individual income. Macroeconomics not
talk about or not discuss about individual income. Only सुनील वाइसल के इनकम के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स बात नहीं करेगा, बट इट डिस्कस अबाउट अ नेशनल इनकम, मतलब पूरे कंट्री का इनकम. नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस. इंडिविजुअल प्राइस मतलब सिर्फ ये मोबाइल के बारे, एक मोबाइल की प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे कंट्री के जो मोबाइल की प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे. उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल. नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट. मैं किसान हूं तो मेरे खेती में जो कुछ आउटपुट हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट राष्ट्र की खेती में कितना आउटपुट हो रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे. मेरी सेविंग की बात नहीं करेंगे, तो पूरे राष्ट्र में, पूरे कंट्री में क्या सेविंग का आज स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. ये होते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो सी फ्रेंड्स, क्या पढ़ा आज हमने हमारे पहले लेक्चर में. वी शॉर्टली गो थ्रू आवर सिलेबस, then we studied what is economics, then we studied three definition of economics, and then we studied classification of economics, branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Okay, I hope you understand. So आप लोगों को कांटेक्ट में रहना है. गूगल क्लासरूम पे इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा, इस वीडियो की लिंक आएगी और नोट्स भी आपको मिलेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.